I think now I've got a go from my technical team. Okay, Ravinder ji, can we start? Sure, ma'am. Okay, thank you, Ravinder. Uh, a very warm good afternoon. सभी को नमस्कार, आदाब. आज का इस सत्र, this is the day 11. I, Dr. Syed Mubin Zehra, want to welcome all the participants to this day 11th of the 2-week online bilingual interdisciplinary refresher course on Indian folk traditions, a tapestry of diversity, Bhartiya Lok Parampara ke Vivid Ayam. It's an honor today that we are going to have a wonderful speaker with us, a very respected, wonderful, honorable speaker here. And sir, my friends, it's going to be Professor Anand Prakash ji. He'll be speaking to us on the topic Lok Paramparaon ka Manovaigyanic Paksh. Before I introduce you to the wonderful bio or wonderful work and the wonderful achievements of Professor Anand Prakash, I would want to say one thing. Sir, ये माना जाता है कि there is a universal perspective of diversity. And I think the universal perspective of diversity and of folk tradition is psychology. So today's lecture is going to be very interesting, and we are going to link the folk traditions with the universal perspective, that is diversity and psychology. So we are really looking forward to this, and I am really honored to welcome sir on behalf of Atmaram Sanatan Dharm College and on behalf of our respected principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, and our IQAC coordinator, Professor Vinita Tuli, and the co-convener, Professor Anjali Gupta, and my entire team. We are so delighted to welcome you, sir, to this 2-week online bilingual interdisciplinary refresher course on Indian folk traditions, a tapestry of diversity. Bhartiya Lok Paramparaon ke Vivid Ayam. Today is day 11, sir, and today is the first session of day 11. It's an extreme honor to introduce Professor Anand Prakash ji. Professor Anand Prakash ji has been the head of the Department of Psychology, University of Delhi. His teaching and research career spans across more than 4 decades, my dear friends. He has served in various universities like DDU Gorakhpur University, University of Allahabad, Banaras Hindu University, University of Delhi South Campus, and he retired and he at present from the University of Delhi North Campus. Now, sir, beside holding various administrative positions in University of Delhi and membership and chairmanship to several institutes of the University of Delhi, his primary specialization is in applied social psychology, organizational behavior, and human resource management and qualitative research methodology. That is such an amazing and vast canvas of research and work, sir, that you have. Formerly, sir has been the Dean, International Relations, Arts, Humanities, and Social Sciences, University of Delhi. For more than 6 years, he has been responsible for facilitating collaborations between several international institutions of learning and research across the globe. The publications include more than 3 dozens of articles in various international and national journals. Sir have contributed chapters in various books, including chapters in NCERT book for class 12. He has also been मैम awarded. जरा रिक्वेस्ट है कि आनंद प्रकाश सर को अनम्यूट करने का वो दे दीजिए ऑप्शन, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। रविंदर जी, अभी तो आवाज आई थी सर की। नहीं, वो फिर कह रहे हैं कि फिर से वो हाँ, now yeah, it's done. हो गया। Sir, so good to see you, Okay. sir. नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। Yes, sir. Sir, अब आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, now I can hear. Yeah, we can बिल्कुल। hear you, sir. We can hear you. So as I continue introducing Professor Anand Prakash ji, sir has been awarded the Young Scientist Award by Indian Science Congress, Career Award, and President of National Academy of Psychology. That's a very prestigious one. India Fulbright Scholar in year
2013. Sir has also been a Fulbright scholar. He has supervised more than 36 students for their PhD degree. He has also served on various committees of Government of India, like Institution of Eminence, Committee of UGC, Chairman Task Force to develop aptitude test, that is NAT, Learning Outcome, Curriculum Framework, LOCF of UGC, Special Committee of UGC to upgrade the undergraduate and postgraduate course. Member of Indian Council of Social Sciences Research, that is ICSSR, we all know that as friends, committee member of RDSO, Lucknow, to upgrade assessment process of psychological attributes of railway employees. That's really amazing, sir. You have such a vast canvas and such a vast contribution to the academic scenario. He has contributed more than 10 chapters in various books. Sir has also conducted various training workshops to the members of various organizations as resources faculty. He has conducted workshops on qualitative research methods to several university organizations in India, faculty development programs, as we all know it, FDP friends, to upgrade the teaching competence of faculty members. He has presented papers and delivered as an invited lectures to more than 100 seminars and conferences at international and national levels. He is also serving in the editorial committee of various journals. Sir has written popular articles in Hindi. Sir is presently also the adjunct professor at Department of Psychology, University of Allahabad, Prayagraj. Sir has been Professor Emeritus, Psychology, Faculty of Behavioral and Social Sciences, Manav Rachna University. Sir has been the National Fellow, National Academy of Psychology, NAOP, India. Friends, I can just go on and on. I can only say that we are really honored to have such an enriched academician here to share his thoughts on the topic. And Professor Prakash, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ कि हमने जो टॉपिक चुना है फोक ट्रेडिशंस, इस पे लद्दाखी फोक ट्रेडिशंस पे बात हुई है, लोकगीतों पे बात हुई है और बहुत ही विविध आयाम प्रेजेंट हुए हैं इस पे। लेकिन आपका जो टॉपिक है कि लोक परंपराओं का मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुझे लगता है कि ये एक जो हमारा जो एंटायर टॉपिक है फोक ट्रेडिशंस का, उसको एक कॉमन थ्रेड में बांध देगा, जिसको हम एक यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव ऑफ folk traditions कहते हैं। सर, अब ज्यादा देर ना करते हुए, I would invite you for the lecture. Thank you, sir, and we are really honored, and all the participants are really looking forward to it. Welcome, sir. Namaskar, sir. Namaskar, Dr. Zahra. How many subjects, discipline people are participating in this? Sir, we have it's an interdisciplinary course, so we have people from Maharashtra, we have from different areas of the country, we have some from abroad also, and people are from psychology, literature, commerce, so it's a mixed bag of academics. And medium of sharing is English or Hindi? Sir, आप bilingual हो सकते हैं. Okay, ठीक है. Yes, sir. कितना देर समय है मेरे पास? सर, तकरीबन एक घंटा 50 मिनट, and then we have question answer session. Questions, okay. Because the next session starts at 3:30, sir. So we have that. Thank you. Yes, sir. बहुत धन्यवाद. Thank you very much for inviting me to speak on a topic which is tangentially my research journey. It's not been primary field of my research. I do delve once in a while looking into this, because psychology and understanding human behavior and human psyche has been my main agenda of disciplinary research. तो भटकते भटकते जो है वो साहित्य में या लोक परंपरा को भी जानने और समझ, उसका एक सीधा सा वजह ये है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट और कुछ ऐसे रिसर्च एक्टिविटीज किया है जिसमें मुझे लोगों के बीच जाना पड़ा है या लोगों के बीच समझना पड़ा है उस बात को, उसको समझने के लिए। तो मेरा उद्देश्य इस पूरे सेशन के 3 ही उद्देश्य हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला उद्देश्य ये है कि आखिर ये
मनोविज्ञान, what are the elements of psychology into the folk traditions? The elements which help us understand the human consciousness, the making of a human and human behavior. This was the one primary objective. Second objective was to see that how these folk traditions, whether it is a a story, dance, food, the way of dressing, the music, the art, the murals, and different other kinds of mediums of expression of folk tradition. These are the mediums for me. These are the products of the culture through which culture expresses itself. ये संस्कृति के वो उपादान है जिनसे संस्कृति अपने आप को अभिव्यक्त करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है. तो मेरा दूसरा उद्देश्य ये है कि कैसे हम संस्कृति के उन मूल तत्वों पर पहुंच सकते हैं जिससे एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के सिद्धांत निर्मित करता है, जीवन जीने के जो फंडामेंटल हैं. क्योंकि हर आदमी के पास लाइफ को जीने का एक जरिया है, एक तरीका है. उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं. तो लोक परंपराएं इन सिद्धांतों, इन तौर तरीकों को, इन जीवन शैली को कैसे अभिव्यक्त करती है, उसके क्या नजरिया है. और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फोक ट्रेडिशंस पीढ़ी दर पीढ़ी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिशन बनते ही इसलिए हैं कि ये दे हैव द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडेंटिंग द टेम्पोरल बाउंड्रीज. जो समय की सीमा है, जो लिमिट्स हैं टाइम की, उन लिमिट्स के बियॉन्ड जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफर होता है. तो मैं जानना चाहता था कि आखिर इसमें काल जयिता के जो टेम्पोरलिटी के कौन कौन से एलिमेंट हैं विच मेक इट win over the time constraint. We all are live in a particular time frame. We have a limited time to live in this earth. But traditions and folk tradition particularly have the capacity to live beyond the temporal boundaries. तो मेरी रुचि इसमें लेकर के जो मेरा उद्देश्य था कि इन तीनों तत्वों को पाने के लिए, पहला कि सामान्य मनुष्य की इच्छाएं, उसके अभिप्रेरणाएं, उसकी प्रत्याशाएं, उसका आशा, उसका भय, उसका भाव कैसे जो है वो सामान्य जन की भाषा का उपयोग करते हुए अपने आप को व्यक्त करता है, उस व्यवहार को समझने में मदद करता है. तो दूसरा वो सिद्धांत क्या है, और तीसरी बात कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफर होते हैं. और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं तो क्या इनमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ संस्कार इसके बनते हैं, कुछ नई तरह की चीजें आती हैं. और हमारे सारे टेक्स्ट जो एंसेस्ट्रल हैं, महाभारत हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, वॉट एवर इट इज, दे आर बीइंग इंटरप्रेटेड बाय ईच जनरेशन इन देयर ओन वे. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इनमें इतनी जगह कहाँ पे होती है जिसमें एक मल्टीपल डाइवर्स मीनिंग के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट की जाए. So keeping in view these three, I thought of taking the risk or sharing some of my half-baked ideas and thoughts, which are going to culminate in a paper, research paper. But I thought कि नहीं, इस ग्रुप के साथ अपने इस आइडिया को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि ये उस कसौटी पर, चूंकि अलग अलग डिसिप्लिन के लोग आ रहे हैं, उनकी कसौटी पर कैसे खरा उतरता है. और इसके लिए मैंने एक लोक परंपरा है जिसको कहानी की लोक परंपरा कहते हैं, किस्सा गोई, दास्ताने किस्सा गोई आपने सुना होगा. मैंने कहा कि मेरे पास दो विकल्प थे. एक तो विकल्प ये था कि मैं लोक परंपरा पर कुछ सामान्य सी बातें करूं, जो हमें लगा कि चूंकि मैं बहुत लेट आ रहा हूं इस सेमिनार में, तो सामान्य बात करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें लोग पहले कर चुके होंगे. तो मैंने कहा कि मैं एक विशिष्ट कहानी को लेकर के मैं उसके तत्वों को तलाशने की कोशिश करता हूं कि इसमें मनोविज्ञान के तत्व कहाँ हैं जो सामान्य जन से या सामान्य जीवन से जुड़ते हैं. क्योंकि मनोविज्ञान के दृष्टि से कहानी या कथा या स्टोरी या किस्सा या दास्तान गोई, जिसके अलग अलग नाम हैं, भारतीय लोक परंपरा में एक केंद्रीय प्रस्थान बिंदु, इट इज ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. एक केंद्रीय प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि अगर आप देखें तो ज्यादातर हमारा जो साहित्य है भारतीय वाङ्मय का, वो कथा के रूप में, वो कहानी के रूप में.
तो मेरे मन में एक हल्का सा विचार ये आया कि आखिर ये कहानी सुनने की और कहानी सुनाने की बात कैसे शुरू हुई होगी। तो देन वेरी इंटरेस्टिंगली वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि यार पहले लोगों को सुनने में बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए लोग सुनने की आदत डालने, इसलिए कहानी सुनाने की कला विकसित हुई। बचपन में जितनी कहानियां आप सुनने वाले हैं कि नहीं, श्रोता है कि नहीं है, सो टू डेवलप inculcate the habit of a good listening, and believe me, if you inculcate the habit of a good listening, I think we also ensure the possibility of becoming a better human being, जिससे better connectivity होगी. A better human being is a good listener, and that's one of the defining. जो कहानी जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है हमारी ट्रेडिशन का, हमारी लोक परंपरा का। हर, चाहे नृत्य हो, चाहे कला हो, चाहे हमारी आपसी बातचीत हो। आखिर हमारी आपस की बातचीत कैसे होती है? जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें एक कहानी सुनानी होती है और एक कहानी सुननी होती है। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज द स्टोरीड वे ऑफ लाइफ. Life is nothing but a series of stories, and encounter with the people and relationship is nothing but sharing of stories. मेरी ये कहानी आप सुनो, आपकी कहानी हम सुनते हैं, और कहानियां सुनने और कहानियां बताने के बीच में ही जिंदगी चली जाती है। जब हम पैदा हुए थे तब कुछ कहानियां पहले से मौजूद थी जो हमें सुनाई गई, और जब हम जाएंगे तो गॉड फॉरसेक कुछ कहानियां उसके बाद भी हमारी सुनाई जाएंगी। तो कहानियां एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी देती हैं, और लोक परंपरा का एक मूल्य तत्व है। परंपरा शब्द में ही है कि एक पैर आपका जमीन पर और एक पैर हवा में, तो परंपरा हमेशा गतिशील होती है। परंपरा, एक पैर आपका जमीन पर और एक पैर आपका जो है वो आगे चढ़ने के लिए उठा हुआ हो, आगे चलने के लिए उठा हुआ हो, एंड दैट इज हाउ द ट्रेडिशन। परंपरा, एक पर नीचे और एक पर ऊपर जाकर के चल रहा हो, मतलब गतिशील है। परंपरा जब आपकी ठहर जाती है, जब वक्त के गलियारे में रुक जाती है, तो वो परंपरा धीरे धीरे ढल जाती है और वो परंपरा बाहर हो जाती है, अभ्यास से बाहर हो जाती है, प्रैक्टिस से। तो परंपरा के जीवित रहने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रमाण है कि वो गतिशील रहे, वो हर पीढ़ी द्वारा दोबारा एक बार री एग्जामिन की जाए और आगे बढ़ाई जाए। तो कहानी जो है वो एक, मुझे लगा कि ये भारतीय लोक परंपरा के मूल में है। नृत्य में भी एक कहानी है, भरतनाट्यम आप देख लीजिए, पांडवानी शैली आप देख लीजिए, या दूसरे जो महाभारत और रामायण की जो कहानियां, रामलीला हर बार जो कही जाती है, उसी कहानियां को तो बार बार पाठ और बार बार कथन और बार बार चित्रण किया जाता है। तो कहानी जो है वह माना जाता है कि कहानी मन से हृदय तक की दूरी को बहुत कम कर देती है। इट इज अ वे बाय विच द माइंड एंड हार्ट कम टुगेदर, और कहानी से ही हम आसानी से समाज के एक तत्व को जान सकते हैं। किसी भी जीवित व्यक्ति के आसपास कहानियों का एक मजमा देखा जा सकता है। तो हर व्यक्ति और उसकी जिंदगी कुछ और नहीं, बस एक कहानी है, एक स्टोरी है, जिस स्टोरी की कुछ बिगनिंग है, कुछ उसका हाई पॉइंट है, कुछ लो पॉइंट है, और कुछ उसका कंक्लूजन है। कहानी मन को जगाती है, उद्दीप्त करती है, दुखाती भी है, अंधेरे में मार्ग भी सजेस्ट करती है। अगर जंगल में पेड़ को आप नहीं समझ सकते हैं तो आप गुम हो सकते हैं। उसी तरह जिंदगी में अगर कहानी कह नहीं सकते और कहानी सुन नहीं सकते हैं तो जिंदगी में भटकने का चांस बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए कहानी कहिए, कहानी सुनिए, और लोक परंपरा की कहानियां पकड़िए। उन कहानियों से लोक भी समझ में आता है, और दूसरे बाकी सारे तत्व जो उस कहानी से जुड़े हुए हैं ये भी समझ में आती हैं। कहानी ओरल हो सकती है, कहानी रिटन हो सकती है, कहानी डिजिटल हो सकती है, कहानी के अलग अलग शेप और आकार हो सकते हैं। कहानियां हमेशा नैतिक होती हैं, मॉरल होती हैं। ये देयर इज नॉट ए स्टोरी व्हिच डज नॉट हैव ए मॉरल ओवरटोन्स। ऑल स्टोरीज हैव सर्टेन काइंड ऑफ morality ideations within that. Sometimes they are very explicit and sometimes they remain implicit. कभी वो मुखर होकर के बताती हैं अपनी नैतिकता के पाठ को, और कभी बहुत गुप्त रूप से, बहुत जिसको कहा जाता है बहुत बारीक तरीके से, बहुत महीन ढंग से अपनी बात को कहानी कहती है।
ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो उसको ध्यान देने की बात है कि कहानी के कई प्रकार हैं, और कहानियां आप जानते हैं लोक परंपरा में जितनी कहानियां, इनफैक्ट हिंदी साहित्य अकादमी ने करीब 15-16 वॉल्यूम भारत की लोक कहानियों के ऊपर प्रकाशित कर रखे हैं। और ये बहुत मानवीय ह्यूमन कम्युनिकेशन की बहुत फंडामेंटल एक तरीका है, बहुत डिजाइन है। इसमें जो लोक परंपरा की कहानियां, उसमें स्थानीय सत्य को, जो पॉइंट जो आप अपने इंट्रोडक्शन में उठा रहे थे डॉक्टर जहरा, कि कैसे ये लोकल होने के बाद भी यूनिवर्सल अपील रखती हैं। जी इंडियन फोक ट्रेडिशन में ये एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत बड़ी खूबी है, जिसको बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स ने भी हाईलाइट किया है, कि कहानी आमतौर पर बहुत लोकली और कल्चरली सिचुएटेड होती है, पर उसमें हमेशा एक यूनिवर्सल होने के तत्व होते हैं। तो कसमकसाहट यही होती है कि हमारी कहानी की एक यूनिवर्सल अपील हो, और कहीं पर हम सफल भी हो पाते हैं और कहीं असफल नहीं होते हैं। कहानियां कई तरह की हो सकती हैं। कहानी घटना प्रधान हो सकती है, कहानी चरित्र प्रधान हो सकती है, हास्य हो सकती है, लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कवितामय कहानी हो सकती है, घटना प्रधान कहानी हो सकती है, भाव प्रधान हो सकती है, इन्वायरमेंट प्रधान कहानी हो सकती है। मैंने एक कहानी लिखी थी, और उस कहानी में मैंने परिवेश को पात्र बनाया था, अंधेरे के उजाले से लड़ाई। इसी नवंबर दिसंबर में एक अंधेरे में खड़ा बोल के नीचे का बल्ब टिमटिमा रहा है, और उसकी अपनी अंधेरे से लड़ाई चल रही है सांस के धुंधलुके में। तो ये अंधेरे का उजाले के साथ संवाद है। तो कभी कभी परिवेश भी प्रधान होता है, और कुछ कहानियां तो खैर साइकोएनालिटिक होती हैं, मनोविश्लेषण वाली होती हैं, जिनको आप जा सकते हैं। कहानी पढ़ते समय और कहानी खत्म करने के बाद कई तरह के भाव साइकोलॉजिकल आ सकते हैं। आप खुश हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आप क्रोधित हो सकते हैं, आप में रोष आ सकता है, आप में रोमांच हो सकता है, आप में प्रेम हो सकती है, आप में भय आ सकता है, आप में कुछ घृणा भी हो सकती है। तो जितनी मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय भाव हैं, इमोशंस हैं, वो सब आपको कहानी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करेंगे। मैंने जिस कहानी का चयन किया है समय में बात करने के लिए, वो है पंचतंत्र की कहानी। कि कैसे पंचतंत्र की कहानी 530 के आसपास इसका काल निर्धारित किया गया है ईसा पूर्व से, आज तक लोक परंपरा में किसी न किसी रूप में जीवित है। उसको आप चाहे जैसे देखें, भारतीय लोक परंपरा पूरी तरह से कहानियों से लबरेज है, कहानियों से ओतप्रोत है। महाभारत, रामायण, उपनिषद, कालिदास, लैला मजनू, श्री फरहाद, जितनी भी कहानियां आप देख लें, या कहानियों के दूसरे रूपांतरण जो भारतीय लोक परंपरा में हुए हैं, चाहे उपनिषद देख लें, कालिदास देख लें, माघ देख लें, भारवी देख लें, अनेक उदाहरण हैं। पंचतंत्र कथाएं, जातक कथाएं, हितोपदेश से लेके प्रेमचंद, रेणु, गुलेरी, अमृता प्रीतम, यशपाल, जैनेन्द्र, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि तक सबके नाम गिने जा सकते हैं जो कहानी में। पंचतंत्र भी इसी परंपरा की एक ऐसी कहानी है जिसके विश्लेषण के लिए सारी भूमिका मैंने तैयार की है, कहानी वाली भूमिका। मूल बिंदु मेरा ये है कि पंचतंत्र की एक कहानी में कौन से तत्व हैं जो स्थानीय हैं, और कौन से तत्व जो है यूनिवर्सल हैं, ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर जो एनालिसिस मैंने इसकी की है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। क्योंकि इस कहानी की कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, संवाद, देश काल, वातावरण या भाषा शैली को न लेकर के उसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस की कोशिश की गई है, कि क्या इसका स्ट्रक्चरल है। पंचतंत्र के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देने, इसके ऊपर पहले भी मैंने काम किया था, और एक इंटरनेशनल सेमिनार में, मल्टी डिसिप्लिनरी सेमिनार तो अरेबिक लैंग्वेज ने ऑर्गेनाइज किया था, और इसका जो मूल पंचतंत्र के ऊपर ही पूरा सेमिनार था, और मुझे बाय डिफॉल्ट उसमें की नोट देने के लिए बुला लिया गया था गलती से। मेरी भूमिका वहां पर डीन इंटरनेशनल रिलेशन की तरह थी, क्योंकि इंटरनेशनल सेमिनार था और यूनिवर्सिटी का कोई हाई ऑफिशियल उपलब्ध नहीं था। प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी न किसी को उस इनॉग्रल सेशन में रहना था। जब आए तो मैंने कहा कि भाई आप मेरे लिए सिर्फ औपचारिकता मत कराइए, मुझे पंचतंत्र के बारे में कुछ कहने का मौका भी दीजिए। एंड दे वर मोर देन हैप्पी टू अलाउ मी टू डिलीवर द कीनोट एड्रेस। ये पंचतंत्र की 4 संस्करण में कहानियां उपलब्ध हैं। पहलवी इनवाद, इसका जो पहलवी लैंग्वेज में हुआ है, जो अभी उपलब्ध नहीं है,
किंतु सीरियन और जो अरेबिक इसके ट्रांसलेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो देखिए इंडिया में जो परंपरा उत्पन्न हुई वो धीरे धीरे यहाँ से उसकी लिखित परंपरा गायब हो गई, और इसको माना जाता है कि इसके लेखक विष्णु शर्मा है, जो चाणक्य का ही दूसरा नाम है। हालांकि डिस्कशंस में या डिबेट्स में इसके ऊपर थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये जो चाणक्य थे, जो विष्णुगुप्त थे, जिन्होंने कौटिल्य के नाम से भी जिनको जानते हैं, तो वो अलग अलग साहित्य, या लोग मानते हैं कि कामसूत्र भी उन्होंने लिखा था वात्स्यायन के नाम से, तो अलग अलग विधाओं के ग्रंथ उन्होंने रचे थे, उसमें भी मानते हैं कि विष्णु शर्मा वही थे। इसके जो 11वीं शताब्दी में इसका जो एक संस्करण का वर्जन आता है वो है क्षेमेंद्र बृहद कथा मंजरी, और सोमदेव के कथा सरित सागर के ये अनुवाद हैं इसको करने के लिए। तंतार व्याख्यायिका और जैन कथा संग्रह में ये सारा डिटेल इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी हुई थी 2013 में, 9 जून के दिसंबर में, 9 दिसंबर 2013 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की थी। और देखिए कि ये कथा 16वीं शताब्दी तक ट्रेस की गई है कि कैसे कैसे इसके हुए। तो मैं वही प्रश्न पूछ रहा था कि ये लोक परंपरा आखिर 1000 साल से अधिक कैसे जो है जीवित रही, कथा वाली लोक परंपरा। कथाओं में कुछ तत्व तो यूनिवर्सल रहे होंगे, क्योंकि अभी तक 50 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और अगर ये एक साक्ष्य है कि नहीं, लोक परंपरा में ऐसे तत्व होते हैं जो सार्वभौमिक बनाते हैं, तो 50 भाषाओं में अनुवाद इसका एक सशक्त प्रमाण है। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी burning or blatant or colossal evidence to support the contention that we have the element of universality even when the stories are looking। एक समृद्ध परंपरा जो जन्मी भारत में, और जैसा आप जानते हैं यहाँ से पर्शिया गई, फिर पर्शिया से जो है अरबिक वर्ल्ड होते हुए दोबारा आई, और इसकी रिकवरी का कॉल माना जाता है कि बादशाह अकबर ने इसको अनवरे सुहालई के नाम से इसको इसका तर्जुमा कराया जी। और वो चाहते थे कि सलीम 6 साल के थे, जिनका नाम बाद में जहांगीर रखा गया। ये कथाएं हैं, और कथाएं याद रह जाती हैं तो ग्रंथ की प्रासंगिकता भी बढ़ जाती है लोक परंपरा की। और उसमें करीब 200 के करीब विजुअल्स हैं जो उसमें क्रिएट किए गए हैं करने के लिए। बाद में इस ट्रांसलेशन की प्रति को छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इससे उनको कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल्स सिखाने की बात लिखी गई है। बाद में लतीफी परिवार के पास ये किताब पाई गई, जिन्होंने सोथबी नीलामी घर से इसको 1938 में खरीदा था। और इस संस्करण के अनेक दृश्य चित्र हैं, अनेक गुण जो मनुष्यों में पाए जाते हैं वो जानवरों से मिलते हैं, जिसका कि एक वर्गीकरण वहां पे किया गया है। और जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, शेर को आसानी से भटकाया जा सकता है, खरगोश में तात्कालिक बुद्धि होती है, बिल्ली बेहद नौटंकीबाज होती है, सियार बेहद मक्कार होता है, बंदर बेहद बुद्धिमान और कमिटेड होता है, लॉयल होता है। ये सारे जो गुण आरोपित किए गए जानवरों में, अगर आप आज के संदर्भ में भी जब जानवरों के गुणों का वर्णन करते हैं तो शायद इसी तरह के गुण देखते हैं जो गुण उस समय दिए गए थे। और ये एक जो जिसका वर्जन अभी अवेलेबल है, मैंने तो खैर चौकम्बा प्रकाशन से ली थी, बनारस से, जो इसकी किताब थी पंचतंत्र की, जो संस्कृत और उसका हिंदी में उसका अनुवाद था। और माना यह जाता है कि 1574 से 76 के बीच में जो कार्य किया गया इसको कंसोलिडेट करने का, उसी का ये एक वर्जन है, एक पार्ट है, जो पर्शियन वर्जन का पैरेलल माना जाता है इसको करने के। अब ये सारे के सारे बैकग्राउंड में जो पंचतंत्र की कहानी हुई, जो लोक परंपरा में कहानी समृद्ध करने की जातक कथाएं भी हो सकती हैं, इसमें जो है दूसरी सारी कथाएं भी शामिल हो सकती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च आई केम अक्रॉस जब मैं अपने पीएचडी शोध में भारतीय मूल्यों के बारे में शोध कर रहा था, तो मैंने कहा कि जो कहावतें या जो idioms और proverbs हैं which are spoken in day-to-day life in India, they reflect very deeply the Indian values, the cultural values। तो मैं उस समय प्रोवर्ब कलेक्शन का काम कर रहा था, लिटरेचर के थ्रू भी और लोगों से बातचीत करने के थ्रू भी। तब उस समय ये समझ में आया था कि ये जो प्रोवर्ब्स, idioms या डिफरेंट तरह के मेटाफर्स हैं,
वो कैसे जो है हमारे वैल्यू सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये वैल्यू सिस्टम कलेक्टिवली इवॉल्व होते हैं। देखिए, ध्यान देने की बात है कि ये व्यक्ति विशेष नहीं होते, एक समष्टि में, एक कलेक्टिव में इवॉल्व करते हैं। और ये कलेक्टिव में एक पीढ़ी, एक पूरी की पूरी पीढ़ी जब किसी नए अनुभव को से गुजरती है तो उसको बहुत अच्छे से टटोलती है, परखती है, और जब वो अनुभव समय की कसौटी पर खरा उतर जाता है तब उस अनुभव को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करती है। ये एक लोक परंपरा की मूल अवधारणा में है कि व्हेन ए पर्टिकुलर थॉट, आइडिया और एक्सपीरियंस is received by member of a particular generation, and the generation collectively finds certain value in those experiences, they decide to package it into one or the another form. The packaging is being done, right? जैसे आप देख लीजिए कि आज भी अगर भारतीय हिंदू परंपरा में आप देखें तो लोग कहते हैं कि वर वधू की जोड़ी कौन सी सबसे अच्छी है, तो राम सीता की जोड़ी का ही रेफरेंस दिया जाता है। जी प्रेम और प्रेमिका का उदाहरण अगर लेते हैं तो राधा और कृष्ण का यह उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल हालांकि प्रैग्मेटिक रीजन से अगर आप देखें तो अगर राम सीता की जोड़ी आदर्श सीता थी तो 14 वर्ष का वनवास और बाद की लड़ाई, और जब वो फैमिली वे में थी तब उनका वन गमन, ये कोई आधुनिक परिमाण के हिसाब से कोई सुख का आधार नहीं कहा जाएगा, पर वो आदर्श विवाह की जोड़ी के रूप में आज भी एक कॉमन लोक जीवन में प्रस्तुत है और देखा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी है कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ह्यूमन लाइफ इज अ मल्टी लेवल, मल्टी वोकल एंड मल्टी कॉन्शियसनेस। There are three very important elements. It cannot be understood. ये किसी भी तरह से एक स्तर पर अगर जीवन को हम समझना चाहते हैं, that it is not unitary. It is a multivocal, multi-level, and multi-consciousness. There are different multi-levels of consciousness that's being done. That's why the same experience has a differential impact on the people's life, people's psychology, people's psyche. लोगों के मन के ऊपर, लोगों के जो उनके आत्मा और मन का जो निर्माण होता है उस पर एक ही तरह के अनुभवों का असर पड़ता है। देखिए, लोक परंपरा में एक तत्व जो समझ में मुझे आया कि एक सांस्कृतिक जीवन में काल्पनिक जीवन भी होता है। जैसे हर जीवन में एक जीवन ऐसा रहता है जो हम जीना चाहते हैं पर जी नहीं पाते हैं, द अनलिव्ड पार्ट ऑफ लाइफ। और अनलिव्ड पार्ट को भी जीने की हसरत हमारे हृदय में विराजमान रहती है। किसी ने हमसे पूछा कि आखिर फिल्में क्यों पसंद की जाती हैं, ये तो बहुत अनरियल होती हैं। तो मैंने कहा, आदमी के जीवन का एक पार्ट भी तो अनरियल होता है। जो कुछ उसको रियलिटी में दिया होता है उसका एक एक्सेप्टेंस भी होती है और उसकी डिनायल भी होती है, वो उससे बेहतर जीना चाहता है। तो एक जो अनलिव्ड एलिमेंट है हमारी लाइफ में, हमारे इमोशंस में, लोक परंपरा उस अनलिव्ड जीवन को भी एक, जिसको कहते हैं बहुत उदास सबलाइम लेवल पर ले जा करके प्रस्तुत करती है, एक बहुत ऊपर के स्तर पर ले जाकर प्रस्तुत करती है। और ये जो स्पेस है जहां उसका अपना इमेजिनेशन और उसकी रियलिटी दोनों के बीच में जो जगह है, उसमें हर तरह के अनुभवों को समझने की जगह होती है। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस फाइंड लेजिटिमेसी। जैसे आप देख लीजिए, इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि मैं कौन सी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण बात है। जैसे कि अगर आप देखिए, वास्तविक जीवन में 5-6 प्रकार के ही स्वाद हैं, ठीक है। जैसे कड़वा है, अम्लीय है, जी एसिडिक है, नमकीन है, मीठा है, खट्टा है और कसैला है, यही स्वाद हैं। पर अगर साहित्य में देखिए तो 9 रस हैं। कुछ तो ऐसे रस हैं ना, जैसे प्रेम का भी एक रस है, रोमांच का भी एक रस है, पर उसके स्वाद में उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाना संभव है। पर उस रस का भाव जो हर आदमी अनुभव करने में सक्षम है, कैपेबल है। करता है कि नहीं करता वो अलग बात है, पर उसको बायोलॉजिकली या इवोल्यूशनरी विकास के क्रम में उसको एक क्षमता दी गई है कि वो उसका अनुभव कर ले। जैसे कि दूसरा इसका उदाहरण मैं देता हूँ कि जो काल्पनिक में और वास्तविक में जो छोटी सी स्पेस होती है हमारी लाइफ में, उसी लाइफ में सबके लिए थोड़ी थोड़ी जगह निकलती है। जैसे हमें मानते हैं कि जो 2 हमारे बड़े एपिक हैं वो युद्ध के साहित्य भी हैं,
वो बहुत सारी चीजें हैं। उसमें एक वर्णन है कि रामायण और महाभारत दोनों युद्ध के साहित्य हैं, जबकि हम अपने वास्तविक जीवन में युद्ध नहीं चाहते हैं, पर इन दोनों से बेहद प्रेम करते हैं। ठीक है, दूसरे ग्रंथों में भी आप देख लें, चाहे बाइबल में देख लें, कुरान में देख लें, कोई भी युद्ध के अनुभवों से परे नहीं है। युद्ध है, जीवन में युद्ध है। तो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें समझ में आती है, पहली कि मल्टीवोकल है, मल्टी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, और मल्टी लेयर्ड है उसकी साइकी। दूसरा जो है वो उसके रियल और इमेजिनरी वर्ल्ड में दोनों के बीच में कश्मकश चलती रहती है, वो उसकी डायलेक्टिक्स है, और लोक परंपरा इसको रिफ्लेक्ट करती है। मैं इसके कुछ साक्ष्य पंचतंत्र के माध्यम से देने वाला हूँ। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बेसिकली तरह तरह की भावनाओं का एक एडजस्टमेंट है। मानव जीवन विरुद्धों का सामंजस्य करने की एक प्रक्रिया है, और हम निरंतर उस विरुद्धों के सामंजस्य में लगातार चलते रहते हैं। जैसे कि, और मजे की बात है कि ये दोनों के दोनों द्विध्रुवीय बाइपोलैरिटीज, और ये सारे थॉट्स और आइडियाज मुझे उसी पंचतंत्र को पढ़ने के बाद आए, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका पाठ करने के बाद। जैसे पीड़ा और सुख, ये दोनों दो ध्रुवीय बिंदु हैं भाव के, उसी तरह से जेलसी एंड एनवी, ब्लैक एंड व्हाइट, सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, लव एंड हेट, प्रेम और नफरत। अगर नफरत आप नहीं समझते हैं तो प्रेम को भी नहीं समझ सकते। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको ब्लैक नहीं समझ में आता है तो व्हाइट का कोई मतलब नहीं है। बहुत खूब। अगर जीवन नहीं है तो मरण का कोई अर्थ नहीं है। मरण नहीं समझ में आया है, अगर डेथ ना हो तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कभी कभी कुछ लेखकों ने कहा है कि देवताओं को भी कभी कभी हमसे कहते हैं रश्क होता होगा, बिल्कुल। उसको भी हमसे जलन होती होगी, क्योंकि उसके पास तो अनुभव करने के लिए कुछ है ही नहीं है। वो आज नहीं कल कर लेगा, 100 साल बाद कर लेगा, क्योंकि उसको मरना नहीं है। पर हमें तो छोटे से टाइम में बहुत सारा जीना है। तो इसलिए हमारे जीवन की जो गतिकी और जो डायनेमिक्स है वो कुछ मामलों में देवताओं से सुपीरियर है। इसीलिए हमको लगता है कि हिंदू परंपरा में देवताओं को भी मानव शरीर में अवतार का रूप दे दिया गया है, कि अगर तुम जीना चाहते हो इस श्रेष्ठ भाग को जियो। अब ये सारे तत्व जब मैं पंचतंत्र में देखना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे समझ में आया कि ह्यूमन साइकी, पंचतंत्र में ह्यूमन साइकी में देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन द नेचर एंड कल्चर। ये कहानी जो है पंचतंत्र की, वो एक जंगल की कहानी है जो मनुष्यों के द्वारा कही गई है। और किस लिए कही गई है? क्योंकि एक राजा था, उस राजा के 4 पुत्र थे, और उसमें से राजा के हिसाब से कोई भी पुत्र उसका उत्तराधिकार संभालने योग्य नहीं था। तो उसने एक चुनौती दी कि इनको कम से कम समय में जो भी मॉरल लेसन्स करा देगा, whosoever be able to teach them the lessons of morality, तब हम जा करके उसको मानेंगे कि वो सही पंडित और विद्वान है, और उसको आधा राजपाट दे देंगे। और उस समय, और शायद यही आधार है कि बहुत सारे लोगों ने चाणक्य कहा कि एक 80 वर्ष के शिक्षक ने यह लिया और उसने कहा कि मैं राजपाट लेके क्या करूंगा, पर मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। और नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए उसने 5 अध्यायों की रचना की और उनको पाठ पढ़ाया। आप जानते हैं उनके 5 पाठ जो थे, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रलाश और अपरिचित कारकम, ये 5 उसके चैप्टर्स थे। और राजाओं के नाम थे पुत्रों के बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति और अमर शक्ति। ये चारों मूर्ख पुत्रों को राजा ने नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए ये कहानी कही। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो शायद भारतीय जीवन को भी रिफ्लेक्ट करती है। हर भाग के 5 में से हर भाग की एक मुख्य कथा है। देखिए, मुख्य कथा है और उसके अंदर जो है सेकेंडरी स्टोरीज हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्टोरीज हैं, पर उसकी मेन स्टोरी एक ही है। और इसको स्टोरी राइटिंग में कहते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ इम्बॉक्समेंट, ये इम्प्लॉटमेंट है। तो एक बड़ा सा प्लॉट आपने ले लिया, उस बड़े से प्लॉट में देयर आर सेकेंडरी स्टोरीज एंड देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री स्टोरीज, एंड दैट इज हाउ द एंटायर स्टोरी फॉर्मेट इज बीइंग वोवन। इसकी स्टोरीज सरकास्टिक भी हैं और इंटरटेनिंग भी हैं। तो ओवर 10 आप देखिएगा, और ये बताता है कि मानव जीवन में
सब कुछ बहुत गंभीर या एक ही भाव में, एक ही रस में नहीं रहता है, क्योंकि आदमी को जीवन जीने के लिए हर तरह के भाव की जरूरत होती है। इसको कुछ स्कॉलर मानते हैं कि ये कैसे अपने आप को ये लोक परंपरा में इसने जीवित किया, और इसका जो ओरिजिनली अनुवाद अरबी किया गया था वो कलिह के नाम से किया गया था, कलिह दिमन के उससे किया गया था, जो 760 ईस्वी में दिया गया। लेकिन ये प्रकृति और संस्कृति की थीमेटिक उसमें उलझी हुई, जंगल और प्रकृति, तो ये अगर साइकोलॉजिकली देखें तो हम लोगों के बीच में कुछ जो हमारे सेल्फ का पार्ट है, जो मनोविज्ञान में हमारे अपने बनावट का सेल्फ का पार्ट है, उसमें कुछ पार्ट तो बहुत सिविलाइज्ड है और कुछ पार्ट जो है वो बेहद अनसिविलाइज्ड है, ठीक है, which is a very raw, rather than using a word uncivilized, I will say which is still in its most primitive form. जी। फॉर एग्जाम्पल, आप निहायत ही शरीफ और बहुत अच्छे मिजाज के हैं, पर जब आपको गुस्सा आता है तो आप सब कुछ अपना आपा खो बैठते हैं। तो हमें मानते हैं कि अच्छा होना आपका डोमिनेंट, वो आप ही का पार्ट है। और जो बीच बीच में आप गाली बकने लगते हैं किसी बात पर क्रोधित होकर के, या आप वायलेंट हो जाते हैं, या आप ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं कि बाद में अगर आपको कोई बताए कि तुमने ऐसी गाली दी तो आपको भी विश्वास नहीं होता कि नहीं, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ। तो जिसको हम साइकोलॉजिकली कहते हैं कि हमारे सेल्फ का इंफीरियर पार्ट है। तो एक तो हमारे सेल्फ का डोमिनेंट पार्ट है जिसका मेजर पार्ट दूसरों के सामने दिखता है, जिसको कि फ्रायड ने साइकोएनालिसिस में कहा कि ये आइसबर्ग का वो पार्ट है जो सतह के ऊपर रहता है। लेकिन एक पार्ट हमारा वो भी है जो और वो मानता था कि 3/4 भाग जो है वो सतह के नीचे है, जिसको कि हम भी नहीं जानते हैं, जिसको सही अर्थों में कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा है। हमें खुद नहीं मालूम है कि हमारे अंदर का वो पार्ट जो अंधेरे में है वो क्या है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये स्टोरी इसलिए भी कालजयी हो गई कि इसमें मनुष्य के नेचर और नर्चर, जिसको साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं कि मनुष्य की बनावट में कितना उसके पुरखों से मिले हुए जीन्स का हिस्सा है और कितना परिवेश उसको संवारता है। ये झगड़ा आज भी है, ये झगड़ा अभी हल नहीं हुआ है, मनोविज्ञान में भी हल नहीं हुआ है। इसको हम लोग नेचर पेरिनियल डिबेट कहते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर कंट्रोवर्सी, कि कितना हिस्सा जेनेटिक है और कितना हिस्सा एनवायरमेंटल है, पालन पोषण का कितना उसके ऊपर असर पड़ता है, ये बताता है। पर दोनों के बीच में एक कॉम्प्लीमेंटारिटी देख लेते हैं कि कुछ चीजों को सीखने की सलाहियत हमें अपने जीन से मिली हुई है, और उनको विकसित होने के लिए, उनको डेवलप होने के लिए अगर सही परिवेश से हमें सपोर्ट मिलता है तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर ठीक से ब्लॉसम कर जाती है, ठीक से खिल जाती है, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों में एक तरह की कॉम्प्लीमेंटारिटी है। सो रादर देन सीइंग कि कितना भाग नेचर का है और कितना भाग नर्चर का है, हमें कॉम्प्लीमेंटारिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये यूनिवर्सल एलिमेंट, देखिए कहानी है तो जो लिखी गई है स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश और जिसको कि भारतीय परंपरा में कहा जाता है फलश्रुति के हिसाब से, कि भाई आउटकम आप क्या पाना चाहते हैं फलश्रुति के हिसाब से, लेकिन इसकी अपील यूनिवर्सल है और ये बेसिकली संबंधों के कॉम्प्लीमेंट्री होने की कहानी है। और ये भी कहानी बताती है कि अपने आप में कोई भी संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। हर व्यक्ति को किसी और व्यक्ति की जरूरत होती है, वह अपने आप में पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन जीने के योग्य नहीं है। जैसे कि विपत्ति में पड़ा हुआ राजा अक्सर मंत्रियों द्वारा मिसगाइड कर दिया जाता है। मंदिर के ये उसी के सेंटेंसेस है, पंचतंत्र से मैं दे रहा हूँ। या मंदिरों के निर्माण में स्तंभों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से जो कहानी है, कहानी का जो मेन ट्रंक है वो एक कहानी, एक अध्याय की, और बाकी जो है इसको इम्बॉक्समेंट या इम्प्लॉटमेंट के नाम से दिया गया है। और ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। The second very important part that I have understood by the story कि मित्रता, फ्रेंडशिप तभी डेवलप होती है किसी के बीच में, और ये यूनिवर्सल एलिमेंट है। मैं साइकोलॉजिकल थियरीज के रेफरेंस से दे सकता हूँ जो बताते हैं कि दोस्ती तभी होती है किसी से जब हम उससे अपनी कमजोरियों का बंटवारा कर लेते हैं। अगर हमेशा उससे अच्छे अच्छे बने रहते हैं तो हमारी दोस्ती देर तक नहीं चलती है। वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट है,
वो एक तरह का कॉमर्स है, वो एक तरह का ट्रांजैक्शन है। तिजारत हुई, if- वो हाँ दोस्ती नहीं हुई, वो तिजारत हुई, बिल्कुल। हाँ, वो तिजारत हो गई, वो एक तरह का कॉमर्स है। तो तभी मित्रों की कमियां जो उनकी हैं वो हम जानते हैं, और स्नेह से मन खुलता है। ठीक है। और इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये अगर आपके पास सही पैशन है, एंड दैट्स व्हाट द स्टोरी टीचेस अस, कि इफ आई हैव द राइट काइंड ऑफ पैशन, if I have the right kind of a cognition and right kind of estimation of the situation, then success is bound to come to me. This is the thing that I have been culled out from that. And this is a very important part of it. देखिए, इसमें इस कहानी में मैं उसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। 4 दोस्त हैं इस कहानी में, और एक कथा के एक भाग में वो 4 दोस्त हैं। एक है कौवा, एक है हिरन, एक है कछुआ, और एक है कौवा, हिरन, कछुआ और चूहा। 4 हैं। मैंने जब ध्यान से इन कैरेक्टर्स को देखना शुरू किया एनालिसिस के लिए, तो मैंने कहा कि भाई चूहा कहाँ रहता है? वो जमीन के अंदर रहता है, बिल बनाकर। कौवा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। देखिए, लोक ज्ञान की और लोक संस्कृति की विराटता आप देखिए कितनी बढ़िया है। कौवा कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। हिरन धरती पर तेज दौड़ने वाला जानवर, और कछुआ कहाँ है? पानी में और जमीन पर, दोनों पे रह लेता, उभयचारी है, एम्फीबियस है। अब ये देखिए, दोनों के अब सबकी रक्षा युक्तियां, सबके डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग है। चूहा डरता है तो कहाँ भागता है? अपनी बिल में। हिरन कहाँ दौड़ता है? धरती पे दौड़ता है। कौवा कहाँ जाता है? आसमान में उड़ता है। और कछुआ जमीन से पानी में घुस जाता है। और ये चारों दोस्त हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो मैसेज ये है कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई एक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण उसके अनुभवों से समृद्ध है। और अगर उन दृष्टिकोण के बीच में अगर तुम सामंजस्य स्थापित कर पाओ, इफ यू आर एबल टू नेगोशिएट एंड अराइव एट एमिकेबल कॉम्प्लीमेंटारिटी बिटवीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू विल फील स्ट्रॉन्गर, because neither of these elements are self-sufficient in their own right for ensuring their defense. देखिए, सबके जीवन का दृष्टिकोण उनके अनुभव से आ रहा है। तो अगर ये चारों एक साथ रहते हैं फॉर अ फ्रेंड, और ये बताते हैं कि कैसी कैसी विपत्तियों का सामना इन्होंने एक साथ, एक टीम बना करके, ग्रुप बना करके। तो जब हम टीम बनाते हैं तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सब लोग एक ही जैसे ना हो, देन इट इज नॉट ए गुड टीम। ग्रुप में अगर सब लोग एक ही जैसे हैं तो सब के सब एक ही बीमारी से मर जाएंगे। वैक्सीनेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल तो यही है, राइट, कि भाई जो बीमारी होने वाली उसी बीमारी के कीटाणु शरीर में डाल दो, एंटीबॉडीज बनाएंगे वो। ठीक है। तो डाइवर्सिटी का जो एक एलिमेंट है, उस डाइवर्सिटी के एलिमेंट को कितनी रिस्पेक्ट की गई। मैंने एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे जामिया के, उनके साथ, वो भी सेमिनार में थे, डिबेट हो रहा था। मैंने कहा कि ये रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में शायद वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस फॉर सबऑल्टर्न लिसनिंग टू सबऑल्टर्न वॉइसेस। भाई, जिस परंपरा में, लोक परंपरा में आप चूहे की, कौवे की, हिरन की और कछुए की कहानियां और उनकी आवाज और उनकी इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, वहां पर आप ये सोचिए कि जो पूरी धारणा है कि द इंटायर अर्थ एंड द इंटायर लिविंग बीइंग is a part of this cosmos, and the order of hierarchy is just a way of living a life. It is not something very real करने के लिए। लेकिन मनुष्य की जो 2 क्षमताएं हैं, मनुष्य के समूह की 2 क्षमताएं हैं, उसने धरती पर उसका कब्जा जमा रखा है, तो बाकी जानवरों को बाहर खदेड़ दिया है। और मनुष्य की 2 क्षमताएं हैं, संगठन करने की क्षमता और सहयोग करने की क्षमता। और आप कल्पना करिए कि अगर ये संगठन और सहयोग की क्षमता अगर जानवरों में आ जाए तो कितना मुश्किल कर सकते हैं इंसान का जीना। दिल्ली में करीब 7 से 8 लाख के करीब कुत्ते हैं, और आप सोच लीजिए कि अगर 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 8 लाख कुत्ते अगर ऑर्गेनाइज हो जाए ऑफिस में और कोऑपरेट करने लगे तो आपका दिल्ली में जीना दुर्भर कर सकते हैं। This is the very, so the people are blessed with a different set of competencies, and there is a need to ensure complement. Just a minute.
My laptop was showing low battery. आप स्विच ऑन कर दिया सर? हाँ गुड गुड. so this is the what. Now the third thing that's this has taught me to do that there is always a difference between the principle and the rules, because the principles are universal and rules are local. Rules are situational, right? Now this situational and contextual knowledge is more relevant. But principles are the lighthouses. ये एक समझ में आया कि प्रिंसिपल जो है, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो जैसे बहुत सारी चीजें जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखिए या जो हायर एजुकेशन में आप देख लीजिए, इक्विटी, इंक्लूजन एंड फेयरनेस, ये सिद्धांत हैं और इस सिद्धांत हमें बताते हैं कि किस दिशा में जाना है. तो जैसे नाव को अपना मार्ग की दिशा तय करने के लिए लाइट हाउस चाहिए, तो प्रिंसिपल्स आर लाइक लाइट हाउसेस, ठीक है, एंड रूल्स आर दोस contextual regulations by which we live our life. This is a very important part, कि the subaltern voices, even those voices which do not have much prominence, are not being very often heard. If they are heard, we will get new insights about. तो लोक परंपरा ये बहुत बड़ी बात कहती है कि जैसे साहित्य अकादमी या भारतीय साहित्य अकादमी का जो मोटो स्टेटमेंट है, उसको अगर आप देखें तो कहती है कि भारतीय लोक परंपरा एक ही है, लिखी गई अलग भाषाओं में. भाषाएं अलग अलग हैं पर एक्चुअली एक ही है सारी, अनेक माध्यमों से अपने आप को व्यक्त करती है. जैसे कि कहीं पर वो रंग का भाव है और कहीं पर रण का भाव है, लड़ाई का भाव है. तो रणमंच और रंगमंच दोनों के बीच में ये चलती रहती है. और लेकिन आप ये समझिए कि किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी ये लोक परंपरा की अवधारणाएं बड़ी पैराडॉक्सिकल लग सकती, बहुत विरोधाभासी लग सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारी मल्टी वोकल मल्टी लेयर्ड, फॉर एग्जाम्पल मनोविज्ञान में ये पाया गया है, मैंने भी अपने शोधों में पाया है कि भारतीय मन जो है एक ही समय में बहुत स्पिरिचुअलिस्ट भी होता है, बहुत मेटेरियलिस्ट भी होता है. उसको सब कुछ चाहिए जो इस दुनिया में अच्छा है, और अगले मोमेंट में भी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं चाहिए. So I am very high on spiritualism, at the same time also very high on materialism. तो मैं इसको एक अपने दूसरे अमेरिकन प्रोफेसर से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि you want to find it too paradoxical. मैंने कहा कि this is the holding paradoxical is a very beautiful element of the Indian mind. भारतीय मन विरोधाभासों को संभालना जानता है, और हमें मालूम है कि यह बात कहने के लिए एक लेवल हम तय करते हैं. When I say that मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, जैसे अक्सर आप पाएंगे कि डिबेट्स में कहा जाता है कि हमारे मित्र हैं, बहुत इनका सम्मान करते हैं, then you tend to disagree, tend to demolish the other person. So we say that at personal level I have this kind of position, at a professional level I have this kind of position. So we have learned to differentiate. So ये घर में पहनने का कपड़ा है और बाहर पहनने का कपड़ा है, ये फंक्शन में जाने की ड्रेस है और घर में रहने की ड्रेस है. So we contextually we have created our mind to do that. ये सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं होती है, सबके देखने का नजरिया और जरिया फर्क होता है. और ये बात की अगर जिसको लोग पूछते हैं कि भाई मैं एक कुछ दिन पहले एक लॉ के पैनल डिस्कशन में था, और मुझे जिस व्यक्ति ने आने का आदेश दिया था वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, प्रोफेसर बख्शी, पेन बख्शी जी. तो उनको मना करने का कोई नहीं. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक पैनल डिस्कशन था कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ. इज देयर एन इंडियन हु कैन बी thought to represent the constitutional self? Is there anything like a constitutional self? भारत में कौन है, प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या मंत्रिमंडल है या सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है?
तो इसके ऊपर जो है मनोविज्ञान की क्या दृष्टि है, मनोवैज्ञानिक इसको कैसे देखते हैं। तो ये सेट की तुम आओ और यहाँ पर अपनी बात करो कि कैसे ये इसका ये बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेल्फ का, तो ये उस दौरान जो ये बात समझ में आई कि जिसकी व्याख्याएं अलग अलग, मतलब कुछ तरह के मीनिंग का स्कोप है वेयर आई कैन इंटरप्रेट द वे आई वांट टू, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद प्रिंसिपल्स। Certain interpretations are permitted till they are not violating the broad contours of a particular principle. तो मैं अगर broad contour जैसे न्याय, justice, the entire Mahabharata was fought to establish the rule of justice, पर justice की जो अवधारणा समझ में आ गई है, उसको जब तक हम सीरियसली कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तब तक हम छोटे मोटे बीच में लिबर्टीज और छोटे मोटे क्वेश्चंस ले सकते हैं। ये एक स्पेस है। तो मैंने कहा कि देखिए, डेमोक्रेटिक सेल्फ आदमी का वो है जो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए हेल्दी मन से कि इट्स ओके, वी डू हैव वेरी डिफरेंट, बट इट डजंट प्रिवेंट अस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशंस and being friendly with each other, respecting each other's specific competencies and specific abilities. हम एक दूसरे की विशेषता का सम्मान करें और उसके साथ बने रहें, यद्यपि हम दोनों अपने अपने मत में बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो डिफरेंस की स्वीकृति और साथ चलने, सहयोग की भावना का लगा, उसके साथ साथ अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करना, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सेल्फ की मेकिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अक्सर मैं देखता हूं कि हमारी मीटिंग्स में, डिस्कशंस में या लार्जर डिबेट में ये वाला एलिमेंट मिसिंग होता है। तो मैं कहता हूं कि क्या हम लोगों ने जो डेमोक्रेटिक सेल्फ का क्रिएशन हो जाना चाहिए था, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो उसका हुआ है कि नहीं हुआ है। आई थिंक द फोक ट्रेडिशन एंड पर्टिकुलरली द स्टोरी दैट आई वाज एक्सप्लिसिटली रेफरिंग टू एज अ रेफरेंस, पंचतंत्र, इसका एक एग्जाम्पल है कि हम डिफरेंसेस को, इडियोसिंक्रेसीज को, डिफरेंट अदर तरह के जो डाइवर्सिटीज हैं, वो चाहे लैंग्वेज की हों, जेंडर की हों, रीजन की हों, एज की हों, डिफरेंट अदर काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की हों, डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटीज में, पर जो कोर एलिमेंट है ह्यूमननेस का, कोर एलिमेंट है जस्टिस का, कोर एलिमेंट है टुगेदरनेस का और कोलैबोरेशन का, क्या उसको रिटेन कर सकते हैं? और रिटेन कर सकते हैं, देन आई थिंक वी कैन बी ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो फोक ट्रेडिशन, पर्टिकुलरली द स्टोरी पार्ट, और इसी तरह से मेरे पास कुछ दृष्टांत और एग्जाम्पल, पर समय नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रेमचंद की कहानियां हैं, उसके ऊपर भी काम किया है मैंने। और आप देखिए, प्रेमचंद की कहानियों का टेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जो लिखित है। तो प्रेमचंद की कहानियों पर गुलजार ने सीरियल भी बनाया है दूरदर्शन के लिए। तो दोनों को अगर एक साथ आप सामने रखें कि जब वही पार्ट जब सिनेमा में बदलता है या सेलुलॉयड में कन्वर्ट होता है, सेलुलॉयड के पर्दे पर बदलता है, या वही जब नाटक के रूप में रूपांतरित होता है, तो उसके अलग अलग संस्करणों में, अलग अलग वर्जन्स में कितने नए तरह के अर्थ, कितनी नई तरह की समृद्धि उत्पन्न होती है, और उसका स्कोप है कि नहीं। हमें लगता है कि लोक परंपरा विशेष रूप से भारत की, वह स्कोप को देती हैं, और इसको जब एक पीढ़ी एक खास समय तक टेस्ट कर लेती है, समझ लेती है, फिर वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करती है अपने नॉलेज का ट्रेजर, कि देखो मैंने ऐसे इसको देखा और समझा है। नई पीढ़ी उसमें कुछ अपने अनुभवों से उसको जोड़ती है, अगर उसके मूल को रिटेन करती है, फिर वो अपनी अगली पीढ़ी को देती है। ये निरंतरता, कंटिन्यूटी का एहसास लगातार बना रहता है, और इसी निरंतरता को जीने को शायद एक अर्थों में संस्कृति भी कहा गया है, कि दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए कल्चरल ट्रांसमिशन, इट इज ऑल्सो ए कल्चर। क्योंकि कल्चर एक दिन में नहीं बनती है, कल्चर बनने में समय का एक बड़ा हिस्सा जाता है, पकता है। वो अचार की तरह से नमक पकता है उसका धूप लगने से। एक फ्रेज है ये भी, जब तक धूप नहीं लगे तब तक अचार पकता नहीं है, और अचार पकता नहीं है तब तक वो खाने लायक नहीं होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा अगर पका हुआ अचार आप खाना शुरू करें, ना पका हुआ अचार। उसी तरह संस्कृति के तत्व हैं जिनमें समय की धूप लगती है तो पकते हैं। लोक परंपराएं भी जब समय की धूप से पक जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक टाइम टेस्टेड हो जाते हैं, तब उनकी निरंतरता या उनकी लॉन्जिविटी, उनकी ज्यादा दिन तक चलने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। ये हम कलाओं में देख, समय समय में उसमें थोड़े बहुत संशोधन हो सकते हैं, क्योंकि परंपरा है, और परंपरा में तो एक पैर जमीन पर तो एक पैर उठा हुआ भी तो है।
तो जब वो रखा जाएगा तो फिर दूसरा पैर उठेगा, तो ये गतिशील उसको बनाए रखेंगे, एंड दैट इज हाउ द ट्रेडिशन गोज. दिस इज व्हाट आई सी as a psychological elements in the Indian traditions. That is how I see it. Thank you. सर बहुत बहुत शुक्रिया. Am I audible, रविंदर जी? मेरी आवाज? हाँ, ओके. सर, वक्त कैसे गुजर गया, आपने जो इतना सुंदर व्याख्यान दिया. मैं एक मुझे बस एक शेर याद आ रहा है और मैं वो जरूर शेयर करूंगी आपके साथ कि जो आपने जो कहानियों का जो एक आपने एक कहानियों का एक बुना हमारे आसपास हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड देन हाउ यू टुक इट एज अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड हाउ इट टचेस आवर लाइफ, एवरीडे लाइफ, एंड also our cultural life, our traditional life. I think that really made sense and it really touched me. तो जैसे किसी शायर ने कहा है कि मुझ में भी एक जंगल है. ये मेरे ख्यालात थे जब मैं आपका जो व्याख्यान सुन रही थी कि मुझ में भी एक जंगल है ख्यालों का, मलालों का. मुझ में भी एक जंगल है ख्यालों का, मलालों का. तो क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और सर आप हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो यूनिवर्सैलिटी की जो हम बात कर रहे थे थ्रू फोक टेल्स और पंचतंत्र, हम बचपन से हम सुनते आए हैं, लेकिन आज जो नजरिया आपने हम तक पहुंचाया और जिस नजरिए से हम उसको देखना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमको काफी दिन तक हमारे जहनों में ये बात रहेगी और हम किस तरह से फोक स्टोरीज और फोक कहानियों को, जिसको हम बहुत नॉर्मल मानते हैं, पंचतंत्र हमारे रोजमर्रा के पढ़ने लिखने का हिस्सा है, हमने स्कूल में पढ़ा है, तो लेकिन उसको इतनी सीरियसली हमने लिया और उसमें कितना साइकोलॉजी, हाउ साइकोलॉजी मैटर्स इन दैट. और जो आपने परंपरा की बात की, जैसे अमीर खुसरो का जो तबल की जो हम बात करते हैं, जो सूफी पर्सपेक्टिव है तबल की, आप कैसे पानी का जो मूवमेंट तबल जैसा होता है, तबले जैसा होता है, वो मुझे उसको उसी से परंपरा को मुझे लगता है कि हम उसको उसी से कनेक्ट कर सकते हैं. डॉक्टर ज़हरा, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हमें जी सर. मानते हैं कि जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ म्यूजिक है वो तबला या ढोलक है. जी सर. कारण उसका ये है कि व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, the first exposure to the sound comes from the heart of the mother. Right. And how the heart beats, and that heartbeat, this is the one. Second, when the child is born, how mother feeds him or her. And while feeding, you will often find, and you can notice it, that the left side of the mother's breast comes first. And left side is the heart side, where the child's ears are close to the heart. So the first exposure to the music beat, and that's what the psychoanalytically driven thinkers say, the first beat is of the heart beat, and that's what the dholak or the tabla is the most primitive, most foundational, most fundamental music that we all are exposed to. So आपकी बात को सपोर्ट यहाँ से भी मिलता है साइकोलॉजिकली. बहुत खूब सर. मुझे बहुत क्योंकि साइकोलॉजी जैसा कि हमने शुरुआत की और सर आपने भी जो शुरुआत की, कुछ चीजें बहुत पर्टिनेंट और बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड एज एन एकेडमिशियन, सिंस वी आर ऑल एकेडमिशियन, इट रियली इम्प्लाइज टू अस. देयर आर सम क्वेश्चंस कमिंग सर, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ दूं, उसके बाद वी कैन गो टू क्वेश्चंस. इवन आई हैव सम क्वेश्चंस. ये पल्लवी कौशिक जी हैं, ये कह रही हैं, सर इट वाज अ वंडरफुल सेशन. कैन यू सजेस्ट सम इंट्रोडक्टरी रीडिंग्स on Indian folklore studies? And sir, I think there is another comment by Suparna Jain Thakur. Yeah, she's writing, I have been a student of sir from masters onwards. Till date, when I get an opportunity to listen to sir, I always learn something novel. Thank you so much, sir. This is Dr. Suparna Jain Thakur. She's from Daulat Ram College. So these are some views coming. सर एक क्वेश्चन हमारा है, और जस्ट बिफोर दैट, क्योंकि आपने पंचतंत्र के ट्रांसलेशन की बात की, तो आई डिड लिटिल बिट ऑफ सम वर्क. रविंदर जी, कैन वी जस्ट शेयर दैट? आई एम श्योर सर विल लाइक इट. कैन वी जस्ट शेयर? प्लीज. There is some screen, you'll see something on the screen, the paintings, and this is for the participants as well as the one of the references that sir has given. Ravinder ji?
Can we have the we are Is it getting, it's not visible yet. Yeah, Yes, now. wonderful. Yes, sir. So I just did a little bit of something in between your lecture, and I mean, it was the motivation of your lecture because मुझे आज भी जो मेरे पेरेंट्स ने, because my father had this, he used to tell us stories, and then अगर बच्चों को कोई, ये हमारा ट्रेडिशन है कि कोई बात समझानी हो तो वो कहानियों के जरिए या बिल्कुल हमारे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे this is- बच्चों को सुनने की आर्ट जो है डेवलप कराई जाती थी कि जी ये सुनना सीखे, तभी जीवन में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। Okay, can we have that one more with all the animals? Is it possible, Ravinder ji? Just one, that painting. Because I'm so intrigued with Sir's lecture about the painting that Akbar translated. Imagine, Yeah, and 200 He is the- visuals are there in the yes, story. he is the emperor and his son is also going to be the emperor, but then he translates Panchatantra, and how important folklores are. That really Yeah, gives the that's right. message. Yeah. Just one, this sharing, and then we can go ahead with the. सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सुनने की आदत डालना, लिसनिंग, अ गुड लिसनर इज अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो आई थिंक psychology also, I mean, how because in today's world everybody is talking about, हम अहम से बहुत ग्रस्त हैं, हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि every moment we learn so much. So सर, ये है an assembly Yeah. of birds, Anwar Sohaili. And sir, Jahangir was he was a nature lover and he used to paint. तो मुझे Yeah. लगता है कहीं ना कहीं ये बचपन में जो उसकी माइंड पे असर हुआ होगा. This could be one of the reasons. That's just one of the There is a reasons. story sir. behind this painting. Some other time I can narrate. जी और सर. स्टोरी, कथा के अंदर कथा चलती है ना, तो स्टोरी ये है कि लोगों में, पक्षियों में झगड़ा होने लगा कि दुनिया कैसी है। तो हुआ ये कि एक बार पक्षियों का सम्मेलन बुलाया गया, सारे तरह के पंछी आए। तो उसमें गौरैया भी आई, कौवा भी आया, कबूतर भी आया, तोता भी आया, हिरन, सारस, यू नेम एनी, जो कुछ भी, उसमें सबको सर्व धर्म सम्मेलन टाइप का किया गया। जी सर. और हुआ ये कि एक ही बात रखी गई कि अच्छा, तुम्हें दुनिया कैसी दिखाई देती है। गौरैया जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड है, स्पैरो, वो नेचुरल रूप से कोर्ट यार्ड में घूमने वाले, दाना खाने वाले, उसके लिए दुनिया का वही अर्थ है। कौवा जो देखेगा उसके लिए वही अर्थ है। ठीक है, जो गिद्ध है, जो 200-400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसका दृष्टिकोण जीवन के लिए वही। जैसे ऊंची जहाज से दिल्ली को देखना और सड़क से दिल्ली को देखना, ये दोनों अलग तरह के अनुभव हैं। उसी से सड़क से ऑटो से जाना, उसी सड़क से पैदल जाना, उसी सड़क से कार से जाना। So the ultimate aim is that there is something, but we all have a limited perspective. So any claim of knowing everything by your दृष्टि, तो कभी कभी अपने दृष्टि पर बहुत भरोसा करने के बजाय थोड़े शुभहे की नजर से भी देखना चाहिए कि शायद हम पूरी बात नहीं जानते हों, और अपना सच श्रेष्ठ सच है, इसको, इस गुरूर को तोड़ करके देखना कि भाई सच का एक हिस्सा सामने वाले के पास भी, उसकी भी सुन लो। So how this multiple perspective can come together to create a better perspective, that is the theme behind this kind of a visual. बहुत खूबसूरत सर. That's such a wonderful thought. And एक सवाल सर हमारे जहन में आ रहा था, जैसे आपने फोक ट्रेडिशंस की बात की, जो स्पेशली अरेबिक फोक ट्रेडिशंस, कई कहानियां, सर मेरे सवाल से पहले मैं एक ये सवाल ले लूं, एक हमारे पार्टिसिपेंट्स का है, देन आई कम टू दैट. टेकिंग ये पूजा शर्मा जी पूछ रही हैं, टेकिंग अ साइकोलॉजिकल अप्रोच टू फोक, would it be correct to say that similar folk narratives emerged in different parts of the world with similar evolution of mankind? Taking a psychological approach to folk, would it be correct to say that similar folk narratives emerged in different parts of the world with similar evolution of mankind? सर, मेरा भी सवाल इससे जुड़ा हुआ था क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि
कहानियों के ड्रेस चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है, वेदर कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोरालिटी की जो आपने बात की, वो मॉरल चाहे उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी सेम होता है, इस पार्ट का भी उस कहानी में सेम ही होता है. एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल अप्रोच टू फोक. जी सर. बहुत ही जिसको मैं कहूँगा कि अच्छा सवाल है, और गड़बड़ी ये है कि समय सीमित है. कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे जो इसके यूनिवर्सल हैं. यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ह्यूमन इमोशंस यूनिवर्सल हैं. एक थियरी ये है जिसको पॉल एकमैन का नाम दिया गया है कि जो मनुष्य के अनुभव, इमोशंस को, फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के जो भाव हैं, वही 6-7 पूरी दुनिया में, प्रेम का, घृणा का, भय का, क्रोध का, ये सारे के सारे जो 5-6 भाव हैं, वो सारे के सारे दुनिया में, यूनिवर्स में करीब करीब एक ही जैसे हैं. वो कुछ भाव प्रिमिटिव, मतलब बच्चा तुरंत पैदा हुए बच्चे के अंदर भी देखे जा सकते हैं. परिवर्तन क्या होता है, बदलता क्या है लोकल कंडीशन से, वैरायटी ऑफ सिचुएशन से, या कॉन्टेक्चुअल रियलिटी के बदल जाने से उनकी मोडालिटीज ऑफ एक्सप्रेशन, उनके जो व्यक्त करने के तौर तरीके हैं, वो कल्चरल नॉर्म के द्वारा, जो वहाँ के सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं, जो नॉर्मेटिव सिस्टम है वहाँ का, कि यहाँ पर ये चीज परिचित है या परिचित है. जैसे आप अपने, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसका आप प्रेम का भाव सब में दुनिया में एक जैसा मानते हैं कि भाई प्रेम की फीलिंग है, पर उसको अभिव्यक्त कैसे करते हैं? कहीं गिफ्ट दे करते हैं, कहीं हाथ पकड़ के करते हैं, कहीं सिर्फ निहार के करते हैं, और कहीं आंसू बहा के कहते हैं, और कहीं पर हंस के करते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कल्चरल एंड द नॉर्मेटिव सिस्टम. इसको दूसरे थिंकर कहते हैं कि दुनिया में अगर एक पार्ट में कुछ घटित हो रहा है, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इंट्यूटिव एविडेंस है. देखिए, बहुत सारी चीजों के साइंस, चूंकि एविडेंस बेस्ड हम एक साइंस इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, तो हमें कहते हैं कि भाई इसका एविडेंस क्या है, पर हर चीजों का एविडेंस कॉन्क्रीट नहीं होता है. कुछ चीजों का एविडेंस जो है वो निहायत ही इंट्यूशनल होता है. कुछ चीजों का एविडेंस अपने एब्सेंस रहने की वजह से भी माना जाता है कि इट इज एन एविडेंस बाय एब्सेंस. सो ये अगर देखें कि एक पार्ट में एक काम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे पार्ट में उस काम का रिफ्लेक्शन बिना किसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन के, कनेक्शंस के, अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा. तो इसको लोग कहते हैं कि इट इज सम काइंड ऑफ अ टिपिंग इफेक्ट. और ये स्टडी जो पाई गई है कि एक आइलैंड में, जिसमें कि कुछ सैलानी या टूरिस्ट जाते थे, वहां पर अगर कुछ खाना उनको देते थे, जैसे बालू में फेंक दिया समुद्र के किनारे, तो बंदरों ने उसको धो के, समुद्र के पानी से उसको धो लिया और खाना शुरू किया. उन्होंने कहा कि सेम टाइम ऑफ फेनोमेना इज बीइंग सीन ऑन द अदर मंकीज, अदर लंगूर्स, व्हिच हैव नो कनेक्शन विद अनदर काइंड ऑफ आइलैंड. वो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो पंछी या बंदर वहां पे दौड़ के चले आए. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर लॉजिकल और अगर हम एक कनेक्टिविटी इनके बीच में देखते हैं कि वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसने कहा कि देयर इज समथिंग व्हिच ट्रैवल्स एंड रिमेन इनविजिबल. आई थिंक इन द फोक ट्रेडिशन there is a possibility, because the human nature, there are certain kinds of things. That's a good question, and it opened up, a new file in my head. There are certain things in the life which are called cultural universals. For example, बच्चे के जन्म की रस्म दुनिया के हर संस्कृति में है. मरने से जुड़ी हुई रस्में दुनिया के हर संस्कृति में. शादियां दुनिया के हर संस्कृति में होती हैं, और शादियां बचाए रखने की कोशिश भी सभी जगह होती हैं. वाह, क्या बात. हर संस्कृति इस बात की कोशिश करती है कि जहां तक पॉसिबल हो सके मैरिजेस को बचाया जाए. ठीक है, कहीं बहुत शिद्दत से, कहीं बहुत तकलीफ से, कहीं बहुत जल्दी में, पर बचाने की कोशिश जो है सब जगह की जाती है. इसको हम कहते हैं कि कल्चरल यूनिवर्सल्स हैं हमारे. रस्मों का होना, परंपराओं का होना, ट्रेडिशंस का होना. ये दूसरी चीज है बायोलॉजिकल यूनिवर्सल्स इनको कहते हैं. जैसे हमारी भूख, प्यास, घृणा, सेक्सुअलिटी, ठीक है, ये हर दुनिया के हर आदमी को महसूस होती है. उसी तरह से कुछ साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स भी हैं. उसमें साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स हैं कि आदमी को रिलेट करने की उसकी एबिलिटी, दूसरों से रिलेट करने की. आफ्टर ऑल वी ऑल आर बोर्न आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड वी कंटिन्यू टू लिव आवर लाइफ इन सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. मेरी खुद से क्या मेरा रिश्ता है, मेरा दूसरों से क्या रिश्ता है, मेरा अपनी चीजों के साथ क्या रिश्ता है. पर रिश्ते के बगैर, तो एक तो साइकोलॉजिस्ट है गर्गन, वो कहता है कि लाइफ इज नथिंग बट
रिलेशनल काव्य, एक तरह का रिश्तों का गुंजलक है, एक जाल है जिसमें हम निरंतर जो है चलते रहते हैं, कुछ धागे जोड़ते हैं, कुछ बुनते हैं, कुछ नए जाल करते हैं, बट रिलेशनल सेल्फ है हमारी मेकिंग में, रिलेशनल सेल्फ है जिसको करते हैं। तो अगर ये वाली पोजीशन को मान लें तो इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय डॉक्टर शर्मा कि ये अगर ये साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स हैं तो लोक परंपरा की ये जो तत्व हैं वो मूल रूप में भावनाओं को व्यक्त करने में यूनिवर्सल हैं, पर वो कैसे व्यक्त होती है, किस ड्रेस को करती हैं, किस थिएटर को यूज करती हैं, कौन सा डांस फॉर्म करती हैं, उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। डांस तो दुनिया के हर संस्कृति में है, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो भारतीय डांस ज्यादातर, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कथकली हो, चाहे दूसरे हो, देयर इज अ मोर टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड मदर अर्थ, but the western form of dance is the more tendency to go up in the sky. Ballerina dancer, imagine a ballerina dancer dancing on the tip of the toe and trying to go up. तो उनके यहाँ जो है प्रोग्रेस का नोशन, इवोल्यूशन का नोशन, ऊपर की तरफ जाना, आगे बढ़ना है। हमारी अपनी संस्कृति में प्रोग्रेशन का नोशन, विकास का अर्थ ये है समर्पण। So we believe in merging ourselves with the Mother Earth, and therefore all the dance forms have been going to down way to the earth. Body postures आप देखिए उनके कैसे होते हैं, lean, thin, and completely going up and up and up in the sky. That's the Western, dance form. But the Indian dance form, you see that's curvaceous and something which is going down to the Mother Earth. पर जो फीलिंग है डांस की, जो फॉर्म है, वो तो सब में बराबर है। अब कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो वहाँ की हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट से, कल्चरल अपब्रिंगिंग से, लोकल कंडीशन से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, और कैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके थ्रू जो है वो शेप होता है। सो यूनिवर्सल एलिमेंट तो उसमें है ही है फोक ट्रेडिशंस में। कहानियों के संस्करण, जैसे हिंदी की कहानी बता दें, ये करीब करीब सारी भारतीय भाषाओं में कहानी है। जैसे एक चिड़िया थी, आप लोगों ने भी सुनी, उसको एक दाना मिला, पर वो दाने को तोड़ने के लिए जो है वो चक्की के पास गई, चक्की चलाया उसने, एक दाना फंस गया, एक दाना निकल गया। फिर वो चक्की नहीं निकली तो फिर वो गई लोहार के पास, लोहार से कहा कि लोहार लोहार मेरी चक्की तोड़, चक्की में से दाना लूं, खाना खाऊं, पानी पीऊं, फिर मैं उड़ूं। और इस तरह से वो कहानी धीरे धीरे चलती। ये जो रिसर्च उसमें निकल करके आई है कि कम से कम 26 से 27 भारतीय भाषाओं में सेम कहानी है, संस्करण इसके थोड़े थोड़े फर्क है, पर मूल आत्मा कहानी की जस की तस है कि एक गौरैया। और क्या पाठ इसमें पढ़ाना चाहते हैं उसको करने के लिए कि पॉइंट कम्स व्हेन यू हैव टू कन्फ्रंट द सिचुएशन रादर देन सीकिंग हेल्प। यू विल हैव टू लर्न टू सॉल्व योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट लर्न टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, सीकिंग हेल्प एंड एक्सपेक्टिंग अदर्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि अगर भारत में ये कल्चरल यूनिवर्सल है तो सिमिलर स्टोरीज कैन आल्सो बी फाउंड। वर्जन्स उसके फर्क होंगे। एनिमल स्टोरीज बाइबल में भी हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हैं। मेरे पास चूंकि मुझे इसका थोड़ा नशा भी है, शौक भी है, और अब तो प्रोफेशन भी बाकायदा उसको मैंने शामिल कर लिया, क्योंकि उम्र आती है ना कि आप थोड़ा रिस्क लेने लगते हैं इसमें। जब आप करियर में स्टेबलाइज हो जाते हैं तो ये सब थोड़े बहुत खतरे उठाने लगते हैं, क्योंकि आपको अपने उस चिंताओं से थोड़ी मुक्त हो जाते हैं कैरियर पे। तो मैंने इसके ऊपर जो उसका काम किया और देखा, तो जो उज्बेकिस्तान की कहानियां हैं, रशियन शॉर्ट स्टोरीज हैं, या चेकोस्लोवाकिया की कहानियां, इनकी शॉर्ट स्टोरीज ये पॉपुलर बुक से जो उनके स्टॉल और बसेस लगती हैं उसमें से मैंने कुछ खरीदी हुई हैं। और इंडियन स्टोरीज तो हैं ही हैं, गीता की स्टोरीज हैं और डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ स्टोरी, हितोपदेश है, पंचतंत्र है, ये उसी सिलसिले का है कहानी का। इसमें बड़े सारे यूनिवर्सल एलिमेंट्स लिखते हैं। सो इन नटशेल द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट कि अगर इमोशन सेम है, यूनिवर्सल हैं और साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल्स हैं, तो लोक परंपरा के अनुभव यूनिवर्सल होंगे, उनके अभिव्यक्तियों के माध्यम और तौर तरीके स्थानीयता से प्रभावित होंगे। बहुत खूबसूरत सर। अब हम इसके आगे, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जो जो ख्यालात आपने शेयर किए हैं सर, काफी हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको उससे इत्तेफाक रखते हैं। एंड जिसके बारे में मैं आपको कुछ, मैं I'll just share their reactions sir, तो instead of me explaining, जैसे प्रेरणा सिन्हा जी हैं, वो कह रही हैं, what a wonderful idea behind cultural universals,
wish people could appreciate it and nurture them. तो ये एक बहुत खूबसूरत ख्याल है. थैंक यू सर, सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन. पूजा शर्मा जी अपना शुक्रिया अदा कर रही हैं आपको सर. थैंक यू पूजा. सर अगर हम एक प्रश्न ले लें खाली, और उसके बाद मैं ऑफिशियल आपका थैंक्स अदा करूंगी. ये संजय वाघमारे जी हैं. प्रियंका, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन एंड आई विल जस्ट कंक्लूड बिकॉज सर इज आल्सो हैविंग पॉसिटी ऑफ टाइम. लेकिन क्योंकि सर का जो बहता हुआ इल्म का दरिया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम उससे चूके, और जितना हम उससे पानी पी सके पी लें आज, और अपने को तृप्त करें सर की इल्म के दरिया से. सर ये प्रश्न है लोक परंपरा में, ये संजय वाघमारे जी का प्रश्न है. डॉक्टर संजय वाघमारे जी ये महाराष्ट्र से हैं. इनका प्रश्न है लोक परंपरा में मानस शास्त्रीय योगदान के बारे में कुछ एग्जाम्पल दीजिए. लोक परंपरा में मानस शास्त्रीय योगदान. जी सर. ये बहुत अच्छा प्रश्न है. वो एक ऐतिहासिकता के बोध में ले जाता है. लोक परंपरा में जैसे हम मानते हैं कि साइंटिफिक साइकोलॉजी की शुरुआत ऊंट ने की, और उसी में मानते हैं ऊंट ने 5-6 वॉल्यूम फोक साइकोलॉजी के ऊपर भी लिखा है. और ऊंट को माना जाता है कि इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि उसने लैब इस्टेब्लिश करने के लिए इसको लिप्जिग में जर्मनी में उसने काम शुरू किया था. और उसने इसके ऊपर बहुत सेमिनल काम किया है कि कैसे हुआ है. फ्रॉयड ने फोक विजडम और फोक साइकोलॉजी, जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है, युंग का बहुत बड़ा काम है, जिसको कहता है कि कलेक्टिविटी से हमारे अंदर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस बनता है, जिसके पार्ट हम शेयर करते हैं. जैसे भूत प्रेतों की कहानियां, जिसमें एक हमारी साइकी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कल्चरल ट्रांसमिशन और कल्चरल लर्निंग के तौर में हमारे पास आता है. सपने जितने हम तरह के देखते हैं, सपनों में बड़े भारी कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं. सपनों के एलिमेंट्स की जो एनालिसिस उसने की फ्राइडन एनालिसिस में, वो बहुत की. अभी जो कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में जो कॉग्निटिव साइंसेस में जो आ रहा है, ये माइंड और कॉग्निटिव साइंस में, उसमें माना जा रहा है कि जो फोक साइकोलॉजी का कंपोनेंट है, जो कॉमन सेंस साइकोलॉजी को कहते हैं, जो डे टू डे की प्रैक्टिसेस में, बिलीफ में हमारे अंदर पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, उसको बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो इसको फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी में फोक साइकोलॉजी और कॉमन सेंस साइकोलॉजी is considered a very important and legitimate source of data. If you analyze that, we can have a much better understanding in a daily life, such as pleasure, excitement, happiness, future directions, single life और multiple life perspective. जैसे हम जिस बात को कहते हैं, आप ये देखिए कि फोक साइकोलॉजी के ट्रेडिशन में अक्सर माना गया है कि चलो भाई, इस जन्म में अगर कुछ नहीं हुआ तो अगले जन्म में शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, इसलिए ये वाला जन्म हम ठीक से जी लें. पर जो पूरी की पूरी जनरेशन जी और अल्फा जनरेशन आई है, इनकी स्टडीज में पाया गया है कि दे हैव वेरी लिटिल बिलीव इनटू मल्टीपल लाइफ सिंड्रोम. वो कहते हैं कि जो कुछ जीना है इसी जीवन में जीना है, अगला जीवन या दूसरा जीवन ये शुद्ध बकवास है. नाउ व्हेन यू लिव इन अ सिंगल लाइफ सिंड्रोम, सी द रश, see the consumer oriented perspective that these people have. They have a very little satisfaction and they're always short of time in doing other kinds of things. तो आप theory में देख लें, this is called theory of theories, और this is also called indexical expressions, जो हमारे आपके जिंदगी में दिखाई पड़ते हैं, वो डे टू डे एवरी डे कॉमन सेंस में, फोक साइकोलॉजी में. और अभी रिसेंटली इनके बीच में बड़ा जबरदस्त रिवाइवल हुआ है, एंड दे आर ग्रेजुअली फोक विजडम और फोक साइकोलॉजी के ऊपर जो नए तरह से लोगों का इंटरेस्ट आ गया है. एंड दे आर सेइंग दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज कॉल्ड फोक साइकोलॉजी एज अ थियरी ऑफ कॉमन पर्सन. फोक साइकोलॉजी एज अ थियरी. It is a tradition used to denote our day-to-day everybody experiences and culminating into connections of conjectural statements which ultimately take the shape of a theory. तो ये इसमें अगर आप कुछ रेफरेंसेस चाहते हैं तो मैं आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ. और इसको एक दूसरा टर्म भी लोग मजाक में कह रहे हैं कि दिस इज थियरी. Folk psychology is nothing but a theory. So if you key in the Google theory, you will find a lot of material is being thrown, which is taking you toward the understanding of the
folk psychology और psychology of folk traditions. That's the one. Anthropology में तो पूरी की पूरी विधा ही डेवलप है इसको स्टडी करने के लिए, दैट हाउ कल्चर्स इवॉल्व, पर उनका एजेंडा कल्चर इवोल्यूशन का है। हमारा एजेंडा आदमी को और कलेक्टिव को, समाज को समझने का है। So that's what the emphasis of the viewpoint and the focus. बहुत खूबसूरत सर। मुझे आपकी इस बात पे एक शेर याद आ रहा है, इंसानों को जहन में रखते हुए, इंसानी जहानत को रखते हुए, और जो आपने जानवरों के बारे में भी कहा कि अक्सर ये बहस होती है कि भाई जानवरों ने हमारे घर में आके, बंदर ने हमारे घर से आके, मेरा ये मानना है कि वो पेड़ और वो जंगल कहाँ चले गए जो इन जानवर के थे। तो कहानी ये थी कि सब साथ मिल के रहते थे, कहानी ये थी कि सब साथ मिल के रहते थे। फिर उसके बाद अचानक समा बदल गया, फिर उसके बाद अचानक समा बदलता रहा। तो सर बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं सर। एंड संजय वाघमारे जी हैज कन्वेड हिज थैंक्स, नाइस सेशन सर। अमित कुमार भगत जी, तारा जी ने भी थैंक यू कहा है। नाउ सर, क्योंकि आपको तो मुझे तो पता नहीं कैसे समय बीत गया, और मैं ये मानती हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं अंदाजा है, और अभी भी दे वांट सब, लेकिन क्योंकि ये एक ऑफिशियल वो है और हमारे नेक्स्ट सेशन है एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, मैं ये जानना चाहूंगी, मेरा ये सवाल था, मैं आपसे इससे राब्ता कायम करूंगी कि औरतों की कहानी, चाहे वो फोक हो, चाहे उसमें कई कुछ ही परंपरा में हो, जैसे आपने रामायण का जिक्र किया, तो मीराबाई का जो प्रेम है, मीरा का जो प्रेम है, वो आइडियल प्रेम क्यों नहीं माना जाता, उससे क्यों एक क्वेश्चन मार्क, मेरा ये सवाल था। लेकिन मैं ये आपसे ऑफ लेक्चर जरूर डिस्कस मैंने कुछ लिखा था जैनेन्द्र की कहानियों में, जो स्त्री पात्र हैं, जो जैनेन्द्र है हिंदी के लेखक, उनकी कहानियों में, जी तो सर। उसमें कुछ जिक्र और रेफरेंस किया है, क्योंकि उनके 3 उपन्यास जैनेन्द्र जी के थे। तो सोचिए 1930 के डिकेड्स में आए थे, और कितने रिवोल्यूशनरी थे। मतलब आज तो विमेन लिबरेशन का जमाना है, और उस समय वो जो सवाल उन्होंने अपने स्त्री पात्रों के माध्यम से उठाया है, तो लिटरेचर में तो बहुत रिच ट्रेडिशन है इसको करने के लिए। तो बिल्कुल सर। मीराबाई का प्रेम और दूसरे सारे प्रेम के बीच में भी बहुत सारे तरह के डिबेट्स हैं, उसको देखा गया। पर बिल्कुल सर, साइकोलॉजिकली इस पे सर आपसे एक्सक्लूसिवली इस पे हम लोग किसी दिन चर्चा करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। जी जी, जरूर जरूर। और अब मेरा ये पोजीशन है कि मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं, ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स दूं ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर, behalf of IQAC coordinator Professor Vinita Tuli, co-convener Professor Anjali Gupta, and my entire team. I like to thank the entire technical team, Ravinder ji, and all my colleagues here. सर, अलविदा कहने से पहले एक ख्याल है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि जो एक कहानियों के की आपने जो एक नेट बुनी, और किस तरह से हम लोगों को कहानियों के सफर के थ्रू आपने हम लोगों को समझाया, उसकी नजर है। ये एक थोड़ी सी छोटी सी थॉट आई है मेरे जहन में कि हर कोई कहीं ना कहीं एक कहानी लिखता है, हर कोई कहीं ना कहीं एक कहानी लिखता है, कोई कागजों पे लिखता है, कोई किसी की जिंदगी में, कोई कागजों पे लिखता है, कोई किसी की जिंदगी में। सर, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आपने उनका शेर तो सुना होगा, जो सलमान अख्तर है, साइकोएनालिस्ट। सर सर बताइए अरे प्लीज। ज्ञानतोष जी की आवाज आ रही है। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम ज्ञानतोष जी। मैं मैं सुन रहा था सर। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानतोष जी, आप मुझको खींची लाते हैं। मैं तो नहीं, वो तो आपके बिना बात बनती नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही अपने ख्याल में, चूंकि मेन काम नहीं है, तो मेरा आत्मविश्वास हमेशा डगमगाया रहता है कि भाई इस पर बात करना मेरा ठीक है कि मेरा मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होता है आपके बिना। मैं, ये तो सब आपकी सदाशयता है, आपका स्नेह है, और हम अपने आप को इसके योग्य साबित करते रहें, ये मेरा संघर्ष है, ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं नहीं अब तो ये खर्च हो गए हैं। वो तो सभी प्रतिभागी इस बात को महसूस कर रहे होंगे, और मैं भी, कि हर बार कुछ नया मिलता है और एक नई दिशा मिलती है हर विषय को समझने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही समय देते रहें और हम लोगों बहुत का ही उत्साहवर्धन करते रहें। बेहतरीन और बेहद जिंदा दिली से सेशन कंडक्ट किया है जी, जरा ने, जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि काफी इनके मिजाज में जो है एक
शायर भी है और एक विचारक भी है, एक थॉट नहीं, वो वाला सो person। है, सो है। नहीं सर, ये सब आपका दोनों आशीर्वाद है, आपका टीचर में सेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन हो और एक एनर्जी भी हो, मतलब जब वो बात करे तो लगे कि हाँ यार, ये जबान से नहीं बोल रहा है, ये नाभि से बोल रहा है, ये जो मिडिल नाभि कहते हैं, मतलब नहीं सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, वहां से इसकी बात आ रही है, तो उसका बहुत एक इन्फेक्शियस इफेक्ट होता है। सर, शुक्रिया। और मैं आई ऑल्सो एंटायर एंजॉयड मोटिवेशन इज योर लेक्चर, क्योंकि जब आप बोल रहे थे, मैं कहीं ना कहीं मैं उस पेंटिंग वाली दुनिया में भी पहुंच गई, क्योंकि द एंटायर लेक्चर, द इमेंस नॉलेज दैट यू हैव सर, और नॉलेज के साथ साथ हाउ यू कन्वेड, तो वो वाकई वो एक अलग समा, जो हम सूफिज्म में कहते हैं ना समा, तो हम उस हाँ समा हाँ, में क्या बात गए है। थे सर। इट वाज ऑल अभी बिकॉज ऑफ। मिलेंगे तो सूफिज्म और बुद्धिज्म पर बात करेंगे। बिल्कुल सर, नमस्कार सर, थैंक ये सब मेरी एकेडमिक आवारागर्दियां हैं, ये मेरा सीरियस तो हम भटकते रहते हैं, ज्ञान तो जी पता नहीं कहाँ कहाँ से हमको खींच ले आते हैं। कभी प्रेम के साहित्य का सेमिनार करते हैं, उसमें पकड़ लेते हैं, कभी लोक साहित्य में, कभी मेंटरिंग के ऊपर, ये कहीं ना कहीं से हमको पकड़ ही लेते हैं। और मैं हमेशा हाथ छुड़ा के भागना चाहता हूँ, पर ये ऐसे आदमी को लगा देते हैं, अरविंद को लगा देंगे। अरविंद सुबह फोन करेंगे, मैं उनसे कहूंगा अच्छा शाम को बात करिए, फिर वो शाम को फोन करेंगे, अच्छा मैं सुबह बताता हूँ अरविंद, फिर वो सुबह पहुंच जाएंगे। तो उनकी परसिवरेंस के लिए अरविंद जी को भी मेरी तरफ से साधुवाद कह दीजिएगा, ज्ञानतोष जी। जी सर, जी और सर। आपके पास ऐसे ऐसे दूत हैं कि छोड़ते नहीं है, मंजिल सर, पा के ही छोड़ते हैं। सर ने हम लोगों को तराशा है सर, दिस इज ऑल बिल्कुल। सर्स ब्लेसिंग। वो इसका किसका दहलवी का शेर है ना, इधर पत्थर उधर पत्थर, जहां देखो वहीं पत्थर, जिसे हमने तराशा उसे बुत बना दिया। बिल्कुल, वाह, वाह वाह सर, वाह, वाह, क्या बात है धन्यवाद, सर। शिक्षक का धन्यवाद। काम ही यही है, पत्थर तराश के बुत बनाना। क्या बात है। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू नमस्कार। सर, थैंक यू, नमस्कार।